Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. It's been exactly a month, 30 days since the farmer protest began. Right now, a massive agitation. There are farmers from other states also joining in. Well, today, the Prime Minister went all out with a massive outreach. He rolled out 18,000 crore worth SOPs for farmers for 9 crore farmers. On the other hand, he spoke directly to farmers of 6 states, trying to allay fears which are building up. The point is 30 days have gone and there has been no breakthrough. With the Prime Minister stepping in right now, talking directly to farmers of 6 states, rolling out this 18,000 crore SOP, will the farmers which are agitating, will they relent? Will they reject or accept what the Prime Minister is saying? 1 month of an agitation and there is no breakthrough. The Prime Minister today stepped in, speaking directly to farmers, trying to allay fears. In an interaction with farmers of 6 states, Prime Minister Narendra Modi released 18,000 crore rupees as part of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi or PM Kisan income support scheme for over 9 crore farmers. A financial benefit of 6,000 rupees per year is provided to eligible beneficiary farmers, payable in 3 equal 4 monthly installments of 2,000 rupees each through direct benefit transfer under this scheme. The PM Kisan scheme was launched on February 24, 2019 with an aim to augment the income of the farmers. Prime Minister Modi has tried to assure the farmers over the recently passed new farm laws, addressing each point raised by the agitating farmers as a bone of contention. जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। मेरे किसान भाइयों को भी ये किसी ने समझाया नहीं होगा, लेकिन हमारी सरकार ने ये सुधार किया और ये सुनिश्चित किया कि मेरे किसान भाइयों पर पेनल्टी या किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। खरीदार समय से आपका भुगतान करने के लिए अब कानूनन बाध्य है। उसे रसीद भी काटनी होगी और 3 दिन के भीतर भुगतान भी करना होगा। The Prime Minister trying to dispel farmer fears, which he said were being exploited for political gain by the opposition. The question now is, will the farmer relent? Will the Prime Minister be successful in placating the very angry farmer standing in numbers at Delhi's doorstep? Bureau Report, India Today. So we're not going to go to any political debate today because the Prime Minister also said a lot of things which had political content in it in terms of that this agitation is being exploited by the opposition. He also, which many say, made a speech which was very much like an election speech where West Bengal was concerned. We're going to keep all of that aside. What we're really going to do, we're going to go to the union heads of some of the union heads of the farmers who are agitating right now, whether or not they agree to what the Prime Minister has said, because the Prime Minister today on various aspects, be it the MSP, be it the APMCs, has gone out and tried to explain to the farmers that it's not what they think, that this is all fear-mongering. Does the farmer buy it? Let's cut across to 3 farm union heads whose farmers now are protesting on Delhi borders. I want to cut across to Ravindra Chima. He's the president of the Rashtriya Arthya Association. I have Master Shivraj Singh, president Bharatiya Kisan Union. In just about a short while, we'll also be joined by Chaudhary Pushpendra Singh. He's the president of the Kisan Shakti Sangh. Let's begin with Master Shivraj Singh. Master Shivraj ji, एक-एक करके बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज हर चीज पे बोला है जिस पे
आशंका है, शक है जो आप नहीं मान रहे। उन्होंने, चलिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं एमएसपी की बात। उन्होंने साफ कर दिया है कि एमएसपी कहीं नहीं जाएगा, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। ये सब एक हवा बना दिया है कि एमएसपी चला जाएगा या एमएसपी नहीं रहेगा। मानते हैं प्रधानमंत्री की बात? जी धन्यवाद। मैं ये कहता हूं अगर रहेगा की जगह वो मिलेगा कह देते तो बहुत बढ़िया रहता। एमएसपी मिलेगा, क्योंकि रहेगा रहेगा कह रहे हैं, मिलेगा मिलेगा नहीं कह रहे। इसको गारंटी कानून बनाने के लिए सरकार तैयार नहीं। दूसरी बात, देश में क्या होना चाहिए था? सबसे पहले किसान आयोग का गठन, आयात निर्यात के सिस्टम में सुधार और एमएसपी को गारंटी कानून, जो भी प्राइवेट व्यापारी आके खरीद करे वो एमएसपी में 10% जोड़ के उससे आगे बोली लगाना शुरू करे। उससे आगे कितने ये रहेगा रहेगा करते, एपीएमसी मंडी रहेगी और एमएसपी रहेगा। रहना तो जब से देश आजाद हुआ सन 67 से पहली नेवी लगी उसी दिन से रहता चला रहा है। हमें रहने से मतलब नहीं, हमें मिलने से मतलब है। अच्छा मुझे भूख लग रही है, मेरा घर आप खाने की थाली रख दो, उसमें 36 प्रकार के व्यंजन कर दो, लेकिन मुझे खाने ना दो, मेरे क्या अर्थ की है? लेकिन उससे पहले मैं प्रधानमंत्री जी से, देश की सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि कल महामाया फ्लाईओवर पे कल आपके कुर्ता वाले और ओडी कुर्ता वाले, ओडी गाड़ी वाले साथ थे और वो भाड़े पर ट्रैक्टर लाए तेल डलवा करके। उन्होंने धरनारत किसानों को बहुत बुरी बुरी गाली दी और बहुत बुरे बुरे नारे लगाए। देश को इस तरीका से झगड़े में ना डालें, दो फाड़ में ना करें, सहयोगी किसान और विरोधी किसान। अगर वो समर्थन करते हैं इस बिल का तो हमारी तरह खुले आसमान के नीचे धरना लगाए ना। वो एक दिन के लिए बहका करके तेल वेल डलवा करके ट्रैक्टर में कुछ एक दिन की झाड़ी दे करके ये ला रहे हैं। ये नौटंकी ना करें देश में और देश के किसान को बांटने का प्रयास ना करें। ये बाद में एमएसपी मिलेगी नहीं मिलेगी, कृषि कानून रहेगा नहीं रहेगा, मास्टर शिवराज जी उन्होंने और भी, उन्होंने, चलिए एमएसपी की अगर बात करें, सम्मान को समझिए सर अगर एमएसपी की बात करें, एमएसपी की बात करें अगर, तो प्रधानमंत्री ने आज ये भी बोला है, देखिए कि पहले तो इतने सारी जो फसलें थी वो हम एमएसपी के बीच में लाए थे, वो थी नहीं। इस गवर्नमेंट ने बहुत सारे और जो फसल है उसको एमएसपी करार किया है। जी धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब मिलेगा नहीं, मुझे भूख लग रही है, खाने की थाली आगे रखी है 36 प्रकार। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मिल रहा है शिवराज जी, वो तो कह रहे हैं, वो तो उन्होंने पूरा उन्होंने लिस्ट भी बताई कि कितना प्रोक्योर किया गवर्नमेंट ने एमएसपी के तहत पिछले साल। अरे भाई सुनो, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। गवर्नमेंट तो देश का गल्ला पूरा खरीद ही नहीं सकती। 6% 8% गल्ला खरीदा जाता है, उसमें 90% हरियाणा और पंजाब का होता है। पूरा देश देखता रह जाता है। यही हालत गन्ने के किसान की है। 3 साल से रेट नहीं बढ़े, उनका भुगतान नहीं होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ प्रधानमंत्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो देश के मुखिया, देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो फिर और का क्या होगा? मैं ये कह रहा हूँ अगर मिला है तो फिर धान सस्ता क्यों बिक गया, हमारी मक्का सस्ती क्यों बिक गई, हमारा बाजरा सस्ता क्यों बिक गया, हमारी ज्वार सस्ती क्यों बिक गई, हमारी दलहन सस्ती क्यों बिक गई, हमारी कपास सस्ती क्यों बिक गई, एमएसपी से आधे से कम रेट में क्यों लूट ली गई? अगर प्रधानमंत्री के उनको ज्ञान नहीं है इस बात का कि अब किसान की फसल कानून बनने के बाद इस वर्ष लूट ली गई और हरियाणा में रोक लगा दी, नहीं बेचेगा किसान यूपी का, मध्य प्रदेश में रोक लगा दी, कोई बाहर का स्टेट आके नहीं बेचेगा। और जो कह रहे किसान कहीं भी बेचे है, तो ये तो प्रावधान पहले से ही था कि देश के किसान पे कोई टैक्स नहीं है, कहीं भी ले जाकर के बेच सकते हैं। ये सिस्टम तो पहले से ही था। वो ये कह रहे हैं दूसरा विकल्प दे रहे हैं। अच्छा मुझे 1 सेब मिलता चला जा रहा है, ये कह रहे दूसरे विकल्प से 4 सेब मिलेंगे तुम्हें, तो 1 सेब की तो गारंटी कर दे, 1 सेब कहीं नहीं जाएगा। अरे वो 3 सेब ऊपर के मिले ना मिले, 1 सेब की तो गारंटी करे। चलिए मैं पुष्पेंद्र सिंह जी के पास जाना चाहूंगी, वो प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के। पुष्पेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री ने काफी सारी चीजों पे बोला है जिसपे बहुत सारी आशंका थी। एमएसपी से शुरू करते हैं, वही मैं शिवराज जी से ही बात कर रही थी। प्रधानमंत्री ने बोला है एक अफवाह है कि एमएसपी नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं जैसे एमएसपी पहले था अभी भी एमएसपी रहेगा। वो आप मान क्यों नहीं रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो बात हमने मान ली है कि पहले वाली व्यवस्था में एमएसपी जो मिल रहा है या जो सरकारी खरीद हो रही है वो होती रहेगी। हमारा ये कहना था कि जो नई व्यवस्था लागू की गई है, यानी मंडी से बाहर जो एमएसपी की व्यवस्था नहीं मिलती थी, हम उसकी बात कर रहे हैं। यानी प्राइवेट व्यापारी जो खरीदेगा वो भी एमएसपी पे खरीदे, इसकी बात और निवेदन हम कर रहे हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं
इसके विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट खेती के विषय में या मंडी से बाहर बेचने की सुविधा के विषय में सबका जो कृषि सुधार किए गए हैं उनकी लंबे समय से मांग रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई हमसे खरीदे, कॉन्ट्रैक्ट खरीदे या मंडी से बाहर खरीदे, सब एमएसपी मिनिमम होना चाहिए, वो बात नहीं कही गई है। पर उसको कानूनी जामा पहनाने की आवश्यकता अगर आप नहीं, पुष्पेंद्र जी, प्रधानमंत्री का ये भी कहना है, देखिए जितनी पहले एमएसपी पे खरीद होती थी उतनी तो होगी ही ना। अब वो आपसे कौन ले रहा है, वो कह रहे हैं। नहीं, वो बात ठीक है। जो एमएसपी पे खरीद होती थी मुख्य रूप से गेहूं और धान की होती है। जो 10 लाख करोड़ की एमएसपी की फसलें टोटल है, उसमें से 3 लाख करोड़ के आसपास की ही फसलें, और एग्रीकल्चर जीडीपी जो 30 लाख करोड़ रुपए की है, उसमें से केवल 3 लाख करोड़ रुपए की फसलें ही एमएसपी पर सरकार खरीदने का काम कर रही है। तो इसमें हमारा निवेदन ये था कि जो एमएसपी की फसलें प्राइवेट सेक्टर खरीदता है वो भी एमएसपी पे खरीद ले, तो हमारी एक सुरक्षा हो जाएगी। उस सुरक्षा को देने का निवेदन कर रहे हैं। उस बारे में कोई चर्चा या कोई फैसला या घोषणा नहीं की गई है। जी चलिए, मैं रविंद्र चीमा जी के पास जाना चाहूंगी। वो प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय अर्थीय एसोसिएशन के। रविंद्र चीमा जी, एपीएमसी की अगर बात करें, प्रधानमंत्री ने आज एपीएमसी का भी मुद्दा उठाया है। वो कह रहे हैं कि वो 500 करोड़ और लगाएंगे एपीएमसी को स्ट्रेंथन करने के लिए और एपीएमसी लाने के लिए, हटा नहीं रहे हैं। नहीं, हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। एपीएमसी के संबंध में जो भी उन्होंने विश्वास दिलाया है, और एपीएमसी मजबूत होनी चाहिए, इसके लिए जो भी उन्होंने भरोसा दिलाया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि पहले जब ये कानून लाया गया था तो उस समय में एपीएमसी के अंदर और एपीएमसी के बाहर उसके टैक्स का जो था बहुत ज्यादा फर्क था। उसकी वजह से एपीएमसी मंडियों को अंदेशा था कि रविंद्र चीमा जी, आपका जो वीडियो है चला गया है, हम फिर से कोशिश करेंगे कि वो हम ला सकें वापस। यही सवाल, चलिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ही पूछती हूँ। प्रधानमंत्री ने तो आज साफ कर दिया ना कि एपीएमसी, क्या एक एपीएमसी बंद हुई? उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने ये भी बोला 500 करोड़ हम और डालेंगे एपीएमसी बढ़ाने में। तो एपीएमसी का फिर चक्कर ही नहीं रहा। आपको लगता है ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, एपीएमसी व्यवस्था अपनी जगह पे मजबूत रहे, यही हमारा निवेदन है। अगर ये इसको मजबूत कर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एपीएमसी के में सारी परचेज नहीं हो पाती है। ये बात मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ। 30 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर जीडीपी में से केवल 3 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 10% वैल्यू का ही एपीएमसी के माध्यम से एमएसपी के ऊपर खरीद हो रही है। बाकी जो है गल्ला या फसलें तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कम से कम एमएसपी की जो फसलें हैं उनकी कीमत 10 लाख करोड़ है, 30 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर जीडीपी में से, उसको तो कम से कम एमएसपी के ऊपर लागू करने का प्रबंध सरकार कर दे। बात सिर्फ एमएसपी पे आ जाती है, जो एपीएमसी की बात है वो मंजूर है। नहीं, एमएसपी तो जैसा चल रही है वैसी चलती रहे, मजबूती से चलती रहे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जब व्यापार जाएगा तो वो भी एमएसपी से नीचे ना। पर जो एपीएमसी की बात की, जो पुष्पेंद्र जी एपीएमसी की बात की आज प्रधानमंत्री ने, वो मंजूर है। वो कह रहे हैं कि 500 करोड़ और डालेंगे। अभी तक एक एपीएमसी बंद नहीं हुई है जब से कानून आया है, तो ये अफवाह है कि एपीएमसी नहीं रहेंगी। नहीं, एपीएमसी नहीं रहेंगी ऐसी बात हमने कभी नहीं कही। हम बिल्कुल समझ रहे हैं कि एपीएमसी रहेगी, लेकिन एपीएमसी में खरीद तो हो, वो सारी खरीद नहीं कर पाती हैं, इसीलिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर के निजी व्यापारी के ऊपर भी एमएसपी की व्यवस्था लगे, ये हमारा मूल प्रश्न है। चलिए, चीमा साहब हमसे जुड़ गए वापस। जी चीमा साहब, जो एपीएमसी के बारे में बात की है उसके बारे में आप बोल रहे थे। हाँ, नहीं, हम देखो इस बात पे अब हमें कोई शंका नहीं है कि एपीएमसी मंडियों के बारे में तोमर साहब ने भी हमारे जितने भी किसान संगठन मिले हैं उनको भरोसा दिला दिया था। अब इसके एपीएमसी के बारे में हमें कोई दुविधा नहीं है। बात ऐसा है कि जब ये कानून लाए गए थे उसमें जो डिफरेंस था उसका अंदेशा अब किसानों को इतना हो गया है कि अगर इसको एक बार मतलब इन कानूनों को जो है अमेंडमेंट कर दी जाएगी तो बाद में इसमें कुछ ना कुछ जो है वो बड़ी कंपनियों के हक में जो है वो कानून बनाए जा सकते हैं। तो हमारा तो इस समय एक ही विनम्र बेनती है प्रधानमंत्री जी से भी, खेती बाड़ी मंत्री जी से, कि अब अगर एपीएमसी और एपीएमसी के बाहर दोनों जगह टैक्स बराबर होगा तो उसमें तो हमें मतलब कोई जो है वो गिला नहीं है, वो ठीक है। लेकिन अगर
एक जैसा होगा तो फिर नया कानून लाकर कोई उसका कोई मतलब अंतर भी नहीं है। तो एक जैसा तो पहले भी एपीएमसी में अगर बड़ी कंपनियां भी आएंगी वो भी टैक्स, तो आप अर्थिया को, जो मिडिल मैन है अर्थिया है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, आप अभी संतुष्ट हैं? नहीं, ऐसा है, देखो एज ए ट्रेडर, एज ए आड़तिया, हम किसानों का ही माल बेचते हैं। जब तक हमारा किसान जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो हमारे पास तो किसान आएगा तो हम व्यापार करेंगे ना जी। चलिए, तो आप सॉलिडारिटी में खड़े हैं, आप उनके साथ भाईचारे में खड़े हैं? जी, समझ में आ गई। चलिए शिवराज जी, हाँ आप बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ और आज तक जो जनरल कास्ट में पैदा हुए उन्हें कहीं सरकारी लाभ, नौकरी में या किसी में शिक्षा, स्वास्थ्य में नहीं मिला। उसी प्रकार उत्तम खेती, मध्यम बांध, निखत चाकरी, भीख निदान, कृषि प्रधान देश, किसान देवता, किसान अन्नदाता, तो प्रधानमंत्री जी संविधान के अनुसार चल रहे हैं। जब ये किसान देवता है, देने वाला है, अन्नदाता है, तो इसको कोई सुविधा क्यों दी जाए? खाली इसको बातों से बहका दिया जाए जैसे जनरल कास्ट कैटेगरी को बहकाता आ रहा देश। तो प्रधानमंत्री जी संविधान के अनुसार सही चल रहे हैं। वो मीठी मीठी स्पीच देंगे। आज मन की बात में कम से कम 20 किसानों से उन्होंने फोन पे बात की। एक किसान ने भी ये नहीं कहा कि मुझे कोई दिक्कत है आज देश में। तो मुझे तो उनकी बात सुन के ये लगा कि देश के किसान की आय 20 गुनी हो गई है। 2 गुनी तो ये गलत कह रहे हैं। इसलिए किसान को कोई ना तो कृषि बल देने की जरूरत है, ना एमएसपी को गारंटी बनाने की जरूरत है, ना देश में किसान आयोग की बनाने की जरूरत है, क्योंकि देश का किसान सौतेली माँ का बेटा है। दूसरे देश से 2 रोटी में मोल खरीद के इसको ले आए हैं। ये भारत माता का लाल नहीं है। इसलिए देश के किसान को बात करते रहो, उसके पास कोई चीज मत जाने दो। एमएसपी रहेगी, एपीएमसी रहेगी, क्या है ये? और 2000 रुपया हमने तुम्हारे खाते में डाल दिए। अरे तुम हमारी फसलों का मूल्य नहीं दे पा रहे, तुम एमएसपी को गारंटी कानून नहीं कर पा रहे, तुम देश में किसान आयोग का गठन नहीं कर पा रहे, तुम गन्ना की पेमेंट नहीं कर पा रहे, तुम आयात निर्यात का सिस्टम सही नहीं कर पा रहे, तुम डीजल का रेट नहीं घटा पा रहे, तुम खाद महंगा करते जा रहे हो, खाद का वजन घटाते जा रहे हो, किसानों की फसलों का मूल्य नहीं दे रहे, दवाई बीज महंगी होती जा रही है, बिजली पानी दवाई समय पे नहीं मिलता, अनेकों अनेक समस्या है। चूंकि हम सौतेली माँ के बेटे हैं। चलिए पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आपसे भी एक वही सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जो बार बार बोला जा रहा है पुष्पेंद्र जी, विधायकों को चाहिए, सारी सुविधा सांसदों को चाहिए, सारी सुविधा मंत्रियों को चाहिए, चलिए देश के किसान को क्यों चाहिए भाई? चलिए, आपने अपना पॉइंट रख लिया शिवराज जी, पर पुष्पेंद्र जी अगर आप सुने, आप कह रहे हैं कि ये बात तो पहले से तय थी कि एमएसपी मिल रहा था। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं वैसा ही एमएसपी जो पहले मिल रहा था आगे भी मिलता रहेगा। अब वो नई डिमांड है क्या कि हमें बाहर भी एमएसपी चाहिए? नहीं, पहले छूट नहीं थी बाहर बेचने की। अब ये कह रहे हैं कि जो एमएसपी मंडी व्यवस्था के अंतर्गत हम बेचने की छूट थी, उसके अलावा हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप बाहर भी बेच लें। तो जैसे मंडी व्यवस्था के अंदर एमएसपी व्यवस्था मिल रही थी, हम कह रहे हैं कि बाहर आपने बेचने की छूट दी है तो बाहर आप एमएसपी की व्यवस्था भी लागू कर दीजिए। इसमें कोई अलग से या वैसी मांग नहीं है। पर पुष्पेंद्र जी, सरकार का कहना है पहले जैसे था वैसा तो वो रहेगा ही, बाहर का तो एक एडेड बोनस है। अब उसमें एमएसपी की डिमांड आप कैसे रख सकते हैं? ये सरकार का कहना है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जब 2 व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो व्यवस्था अंदर की थी, वहां एमएसपी मिल रही थी, आपने छूट दिया बाहर जाने की, तो बाहर भी तो आप वो सुविधा दे दीजिए जो एमएसपी की व्यवस्था अंदर है। वो बाहर देने में आपको क्या आपत्ति है? वो आपको पैसा नहीं देना है, सरकार को नहीं देना है, वो तो प्राइवेट व्यापारी को देना है। उसमें आपत्ति क्या है? उसकी मैं गणित बता दिया था मैंने कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की जो एमएसपी की फसलें उनकी खरीद करता है जो प्राइवेट सेक्टर है। वो अगर एमएसपी में देगा तो अधिकतम उसको 50-1,000 करोड़ रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। जी, प्राइवेट बिल्डर को महंगा देते हैं तो इनको चुनावी खर्चा नहीं मिलेगा, इनको सभा जो रैली करते हैं उसका खर्चा नहीं मिलेगा। अगर उद्योगपतियों को ये कहते तुम्हें एमएसपी से ऊपर खरीदोगे तो इनको खर्चा कौन देगा पार्टी चलाने के लिए? ये किसान के दबाव में नहीं है, उद्योगपतियों के दबाव में। बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमसे जुड़ने का। अल्टीमेटली इट हैज कम डाउन टू वन बेसिक फैक्ट, इट्स MSP. Hardwire MSP into the law and this agitation is over. Because the Prime Minister made a lot of statements today, trying very hard to allay fears. Even on the issue of MSP, he's spoken again and again and again. It's something which at least to the agitating farmers are not buying. Because what they want is very clear. You're saying that MSP will stay, just hardwire it into the law. And the government is
not doing that. We're going to keep a keen eye on all developments. It's day 30, viewers, and the agitation continues. Thank you for watching.